عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تفسیریں لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت نماز استسقاء ادا کی گئی آج صبح مکۃ المکرمہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی۔ ادھر NPR ایک مرتبہ پھر موضوع بحث بن گیا ہے اور اویسی کی وارننگ بھی سامنے آ گئی ہے، تو وہیں پر وسیم رضوی کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ دھوکہ دہی کے معاملے میں CBI نے معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ وسیم رضوی کون ہے آپ جانتے ہیں، اتر پردیش میں ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آنے کی وجہ سے سرخیاں بٹور رہا ہے۔ وہیں پر مراکش میں فرانسیسی قونصل جنرل کی گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لینے کی وجہ سے اس وقت یہ خبر تشویشناک حالات میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر آسٹریلیائی فوجیوں کے خلاف مجرمانہ معاملہ سامنے آیا ہے، جو 39 افغان شہریوں پر جن کا قتل کرنے کا الزام ہے، تو 5 دسمبر کو کرناٹکا بند ہو سکتا ہے، کرناٹک کے لوگ جان لیں۔ اسی طرح میسور کے علاقے سے خبر آ رہی ہے کہ دلت برادری سے تعلق رکھنے والے کچھ نوجوانوں کی کٹنگ کرنے کی وجہ سے ایک شخص کو کس طرح سے محلے والے ہراساں کر رہے ہیں، ان پر 50,000 کا جرمانہ عائد کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلوں NPR۔ ایک ٹویٹ نے آج ایک مرتبہ پھر NPR کو موضوع بحث بنا دیا ہے۔ CAA، NRC اور NPR کو لے کر کے جو احتجاجات ہوئے اور احتجاج میں شریک ہونے والے لیڈران کو کس انداز میں ابھی تک ٹارچر کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں ان کی عمل میں لائی جا رہی ہیں، ان کو لگاتار بغیر کسی وجہ کے دلی کے کئی الگ الگ قید خانوں میں رکھا گیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر نیشنل پاپولیشن رجسٹر یعنی کہ قومی آبادی رجسٹر جس کو NPR کہا جاتا ہے وہ موضوع بحث ہے۔ قومی آبادی رجسٹر بنانے کا شیڈول طے ہونے کی جانکاری سامنے آنے کے بعد حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے کہا کہ اگر NPR کا شیڈول فائنل ہو چکا ہے تو اس کی مخالفت کا بھی شیڈول جلد ہی فائنل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز NRC سے پہلے کا مرحلہ NPR ہے، یعنی NRC لاگو کرنے سے پہلے NPR لاگو کیا جائے گا، یہ پوری طرح سے واضح الفاظوں میں انہوں نے کہا۔ NPR سے منسلک ایک لنک شیئر کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج، اور انہوں نے لکھا کہ NPR NRC کی طرف بڑھتا پہلا قدم ہے۔ ہندوستان کے غریبوں کو اس عمل میں مجبور نہیں کیا جانا چاہیے جس کے سبب ان کی مشتبہ شہری کے طور پر نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر NPR کے کام کے شیڈول کو حتمی شکل دی جا رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنے کے لیے پروگرام کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ ناظرین آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اویسی کی طرف سے اس طرح کا رد عمل اس خبر کے بعد آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ملک کے رجسٹرار جنرل کے دفتر میں قومی آبادی رجسٹر کے لیے کیا سوال پوچھے جانے ہیں اور اسے کس طرح سے ملک میں نافذ کیا جائے گا، اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ حالانکہ ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا ہے کہ اسے کس تاریخ سے شروع کیا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں تیاریاں جاری ہو چکی ہیں اور الگ الگ انداز میں اس کو کس طرح نافذ کیا جائے گا، ان تمام چیزوں پر بحث جاری ہے۔ جب اس طرح کی خبر آج ایک ٹویٹر کے ذریعے سے ٹویٹر ہینڈل میں آئی تو اس کے جواب میں اسدالدین اویسی نے پوری ساری خبریں دی اور کہا کہ اگر آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کی مخالفت کرنے کی تیاری کریں گے اور تاریخ کو طے کریں گے، کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر NPR کو موضوع بحث بنا دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے میں آپ کو اس وقت لے چلتا ہوں کرناٹک کے ایک علاقے میں جہاں پر SC ST یعنی پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کٹنگ کرنے کی وجہ سے ایک شخص کو دیہات کے ایک لیڈر نے 50,000 روپے کا نہ صرف جرمانہ لگایا بلکہ اس کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، سماجی بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کرناٹک کے میسورو علاقے میں ایک دیہات آتا ہے جس کا نام ہے ہلری، اور یہاں کا مقیم
मल्लिकार्जुन शेट्टी और उसके फैमिली को जो है पूरी तरह से बायकॉट किया गया है, समाजी बायकॉट किया गया है। और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उन्होंने यहाँ पर SC/ST से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, कुछ नौजवानों की उन्होंने कटिंग की, उनकी शेविंग की। इस वजह से जो है इनको, सिर्फ इस वजह से कि उनका ताल्लुक़ जो है SC/ST से है, पसमानदा तबक़ात से है, दलित तबक़े से है, इस वजह से जो है इस तरह से देहात वालों ने वहाँ के लीडरों के साथ मिलकर के पंचायत की जानिब से इस वक्त इस पर जो है समाजी बायकॉट किया गया है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं। मल्लिकार्जुन शेट्टी होने के बावजूद उसके अंदर इस तरह की जो है कोई सोच नहीं थी। वो SC/ST के तबके वालों को बाकायदा अपनी दुकान में ला करके जो है कटिंग करता था, जो भी उसकी दुकान में आता। लेकिन वहाँ के मौजूद जो दीगर बरादरी के लोग हैं, जो अपने आप को खुद साख्ता जो बड़े समाज के मानते हैं, उन्होंने जो इस वक्त ये फैसला लिया है। अब ये खबर जो है पूरी तरह सुर्खियों में छाई हुई है और बड़े अपने आप को मानने वाले शेट्टी और इस तरह के बरादरी लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त तनकीद की जा रही है। पूरे भारत में इस तरह के मामलात अलग अलग तरह से सामने आते ही रहते हैं, वो कर्नाटक हो या आंध्रा हो या फिर गुजरात हो या फिर आप यूपी बिहार की भी बात कर लें। हर तरफ से जो है समाजी दूरियों को और समाजी ऊंच नीच को लेकर के इस तरह की खबरें सामने आती रहते हैं। अब ये मामला पुलिस थाने पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन शेट्टी इससे पहले भी इस तरह के मामले में जुर्माना अदा कर चुके हैं और इस तरह की सज़ा उनको मिल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद वो समाजी दूरियों को ख़त्म करने के लिए, ऊंच नीच और ज़ात पात के इस खलीज को ख़त्म करने के लिए इस तरह का फैसला लेते हैं। और इस बार ये मामला जो है कन्नड़ अखबारात में बड़ी सुर्खियों में और जली सुर्खियों में जब छपा, तो इस वक्त जो है पुलिस पूरी तरह से जो है सामने आकर मल्लिकार्जुन शेट्टी को जो है पूरी तरह से इस वक्त इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कर्नाटक की एक और ख़बर आप लोगों को सुनाऊं। और इस वक्त आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटका के बेलगाम वाले इलाके में और उधर के कुछ इलाकों में हमेशा से मराठी लोगों और कन्नड़ा बोलने वाले लोगों के दरमियान, कन्नड़िगास और मराठास के दरमियान में हमेशा ज़बान को और इलाके को लेकर के कुछ ना कुछ झड़प होती रहती है। बिलखुसूस जब कन्नड़ा का दिन होता है या फिर मराठी ज़बान का उसका अपना दिन होता है। बहरकैफ ये सरहदों में मौजूद इस तरह के बहुत सारे, जब दो रियासतें आपस में मिलती हैं और जब दोनों रियासतें इस बात का दावा करती हैं कि फ़लाँ इलाका हमारा है, फ़लाँ इलाका हमारा है, ऐसे हालात में जो है बहुत सारी चीज़ें पेश आती हैं। लेकिन अब हाल ही में कर्नाटका की हुकूमत ने कर्नाटका में मराठी ज़बान की तरक्यात के लिए एक महकमा बनाने का जैसे ही फ़ैसला लिया और उसका ऐलान किया बीजेपी हुकूमत की जानिब से, वैसे ही जो है यहाँ की कन्नड़ा को या कन्नड़ा चಳುवಳಿ या इस तरह की जितनी भी तंजीमें हैं, जो तहरीकें हैं कन्नड़ा ज़बान को बचाने की या उसके अदब की, उसकी संस्कृति की बात करते हैं, वो सब के सब आज जमा होकर के इस फैसले के ख़िलाफ़ 5 दिसंबर को पूरा कर्नाटक बंद करने का फ़ैसला ले लिया है। इसमें जो है वाटाल नागराज समेत बहुत ही मशहूर कन्नड़ा तहरीकों से वाबस्ता लीडरान शामिल हुए थे। इसमें कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की भी कुछ पुराने अदाकार जमा हुए थे जो मशहूर रहे हैं। उन्होंने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया है कि 5 दिसंबर को बीजेपी हुकूमत की जानिब से लिया गया फ़ैसला कि कर्नाटका में मराठा ज़बान की तरक्यात और बहबूद के लिए एक महकमा बनाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ कर्नाटका बंद करने का फ़ैसला ले लिया है। और इसमें पूरी तरह से ओला कैब्स हों या टैक्सी वाले हों या रिक्शे वाले हों या स्कूल वैन वाले हों या जितने भी लोग हैं और जितनी भी अलग अलग तंजीमें हैं, वो सब के सब इस वक्त जो है पूरी तरह से इस कर्नाटका बंद को जो है कामयाब बनाने की और 5 लाख लोगों को जमा करके इसके खिलाफ जो है एहतिजाज करने का फैसला आज लिया गया है। बहरकैफ 5 दिसंबर को ये बंद होने का ऐलान किया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 दिसंबर को अगर कहीं आप आना जाना इस तरह कोई सफ़र का इरादा रख रहे हों तो पेशगी तौर पर इस खबर को आप देख लें और फिर उसके बाद फैसला ले लें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ख़बर है इस वक्त वसीम रिजवी के सिलसिले में। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वक्फ बोर्ड के अमलाक की खरीद व फरोख्त में धोखा देने की शिकायत के बाद CBI ने रिजवी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है। मरकजी जांच एजेंसी की इंसदाद बदउनवानी शाख ने कार्रवाई की है। मालूम हो कि प्रयागराज और कानपुर में वक्फ अमलाक की खरीदो फरोख्त की गई थी। इसमें धोखाधड़ी और गड़बड़ी का इल्ज़ाम वसीम रिजवी पर लगा है, जो हमेशा से अलग अलग तरह के अपने मुतनाज़ बयानात को लेकर के सुर्खियों में लगा रहता है और जो है बिलखुसूस मुस्लिम दुश्मनी में ये पहले नंबर पर आता है फ़िलहाल लखनऊ में।
बैकअप ये शिया वक्फ बोर्ड सेंट्रल का पहले चेयरमैन रह चुका है। उसी मामले में जो ये हालात आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वक्फ की अमलाक बेचने को लेकर 8 अगस्त 2016 में प्रयागराज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा 27 मार्च 2017 को लखनऊ ने हजरतगंज में कानपुर वाक़े वक्फ के अमलाक को मुंतकिल करने पर मामला दर्ज किया गया था। मरकजी जांच एजेंसी ने लखनऊ और प्रयागराज में दर्ज मामलों को बुनियाद बताते हुए वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रिजवी पर इल्जाम है कि इसने शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वक्फ के अमलाक की खरीदो फरोख्त में घोटाला किया और बहुत सारा कौम का पैसा हड़प कर लिया। इस तरह के इल्जामात इस वक्त वसीम रिजवी पर लग रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है वक्फ के अमलाक और कौम के खिलाफ जो भी चेयरमैन बनता है वो इसी तरह अपने बाप की मिल के समझ करके खाना शुरू कर देता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जो आज एक अंधोनाक हादसा पेश आया। प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में एक ट्रक से बोलेरो टकरा गई जिसमें सवार 14 भारतीयों की मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया कि हादसा गुज़श्ता रात देशराज अनारा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार बोलेरो सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 14 अफराद की मौत हो गई है। ये सब बाराती थे जो नवाबगंज के इलाके शेखपुर गांव में शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये टक्कर इतनी शदीद थी कि बोलेरो गाड़ी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। मरने वाले अफराद इसमें फंस गए थे। लाशों को गैस कटर की मदद से निकाला गया। जराये ने बताया कि मरने वालों में 12 अफराद कुंडा कोतवाली के जेगरापुर गांव के बाशिंदे हैं, जबकि एक का ताल्लुक मानिकपुर और हतीगवां इलाके से है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार भी किया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है। बहरकैफ कल भी एक अंधोनाक हादसा पेश आया था, जैसा कि हमने आपको खबर में सामने रखा। यह आज यूपी से आया हुआ एक अफसोसनाक हादसा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलूँ मराकश में फ्रांसीसी कौंसिल जनरल की गले में फंदा डालकर खुदकुशी की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, मराकश के सिक्योरिटी हुकाम ने बताया है कि फ्रांस के कौंसिल जनरल ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शिमाली इलाके तंजा में फ्रांसीसी कौंसिल जनरल डोन्स फ्रैंकवीस की लाश कौंसिल खाने की इमारत के अंदर उनकी रहायशगाह में लटकी हुई मिली। सिक्योरिटी हुकाम इस वाक़े में मुजरिमाना शुबहात के इम्कानात की तहकीकात जारी रखे हुए है। मराकशी मीडिया ने तस्दीक की कि कौंसिल जनरल ने जुमेरात की सुबह अपनी रहायशगाह के अंदर जहाँ वो तनहा क़याम पजीर थे, निजी नोयत की परेशानियों की बिना पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। बैकअप नाज़रीन, चूँकि मराकश से खबर आ रही है और दूसरी बात यह है कि फ्रांसीसी कौंसिल जनरल हैं, तो ऐसे हालात में एक मुस्लिम मुल्क में फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले कौंसिल जनरल की जानिब से खुदकुशी कर ले जाने पर ये खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही, इसलिए कि सिफारती जिम्मेदारियों से सुबुकदोश किए जाने के सिलसिले में वो फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा को दरख्वास्त दी थी। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि उन्हें चंद हफ्ते कबल ही यहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन वो मराकश में रहने से क्यों इनकार कर रहे थे, क्या हालात थी, इन तमाम पहलुओं को गौर करते हुए इस वक्त खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रही है, बिलखुसूस फ्रांस और मराकश में। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और ख़बर है खाने काबा और मस्जिद नबवी की तस्वीर को आप देख सकते हैं, जहाँ पर नमाज इस्तिस्का की अदायगी हुई। आज जमअतुल मुबारक की सुबह काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बारिश के लिए खुसूसी तौर पर नमाज इस्तिस्का अदा की गई। दोनों मुक़द्दस शहरों के गवर्नर्स भी नमाज इस्तिस्का में शरीक हुए। इस तरह की खबरें आई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के मारूफ मजहबी रहनुमा जिनको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कहा जाता है, वो आज लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, विफाकी व सूबाई वज़रा और सियासी व मजहबी रहनुमाओं ने इजहार अफसोस किया है इनकी मौत पर। दीनी इशूज़ पर ये हमेशा से धरनों के हवाले से मशहूर माने जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। जब कभी कोई इस्लामी मामलात होते हैं, दीनी इशूज़ आते हैं, उस वक्त जो एहतिजाजात होते हैं, धरने होते हैं, उन तहरीकात को जो है उस वक्त पूरी तरह से पहले सफ़ में शामिल होकर के एहतिजाज में शिरकत करने और उनकी रहनुमाई करने में ये चेहरा हमेशा से सामने आता रहा है, जिनका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। उनका इंतकाल होने पर आज पूरे पाकिस्तान की जितने भी उलमाए किराम हैं, तमाम तबक़ात और तमाम समाज और तमाम जो है मसालिक से ताल्लुक़ रखने वालों ने अपना इजहार ताज़ियत किया है और अपने अफसोस का इजहार भी किया है। रिजवी की पार्टी तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इनका पार्टी का नाम था तहरीक लब्बैक। बहरकैफ नाज़रीन, आइए
میں استنبول لے چلتا ہوں. صدر رجب طیب اردوغان کی تصاویر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صدر رجب طیب اردوغان اس وقت جہاں کھڑے ہیں دراصل وہ ایک مسجد کی تصاویر ہیں جہاں آتش زدگی کی بھیانک واردات پیش آئے تھے اور حادثہ پیش آیا تھا, اور اس آتش زدگی کی وجہ سے مسجد پوری طرح سے تباہ ہو گئی تھی. صدر اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ تاریخی اہمیت کے پیش نظر مسجد کو اس کی اصل شکل میں جلد سے جلد بحال کیا جائے گا. یہ کہتے ہوئے وہ ازبخود مسجد کا دیدار کرنے, وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے پہنچے تھے. تو اس وقت کی یہ تصاویر اس وقت جو ہے پوری طرح سے وائرل ہو رہی ہیں. بیک ناظرین, اس وقت کے ہمارے پرائم ٹائم میں کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر شام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے, رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے, اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے. تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے, ممتاز پایا ہے. تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار, سیدھی بات عظیمت جرأتوں